Welcome you once again for a history class, chapter number 4. Today we'll take on a very interesting chapter, that thinker, believers and building cultural development. In this chapter we will go a long journey, how our travelers, philosophers try to search out new things about it. आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे फिलोसफर्स ने और ट्रैवलर्स ने अटेम्प्ट्स करी अंडरस्टैंड करने की वर्ल्ड को. So that we'll try to understand from this chapter, right? So we have so many philosophers. They have tried to understand the world they inhabited, right? So in this we will see this thing also, and what are their ideas, उनके कौन कौन से ideas थे, that also we'll see. There are so many sources from we get lot of an idea, right? It can be oral, it can be written text. अगर आपको कुछ पता करना है तो there should be some sources how historians come to know the new things, by oral text or written things, right? So mainly other things are also expressed in architecture and sculpture, that also has been shown in it. हम लोग ये भी देखेंगे, and then we will see definitely how this text put influence on a thinkers. हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इन सब ने इन्फ्लुएंस किया थिंकर्स को, लोगों पर, that also we see. And in this chapter we try to focus on Buddhism. It's a very important to remember that this tradition was not in isolated. ऐसा नहीं है कि पहले कोई रिलीजन बना नहीं था, इसके एकदम बन गया. So that should not be there. I told you Buddhism is not developed in isolation. अकेले में नहीं हुआ. There were so many other traditions are also there. There were so many traditions were also there. बहुत सारे traditions थे उस टाइम, बहुत सारे धर्म थे उस टाइम. So mainly there are so many debates and dialogues which were also carried out that way, and we have some sources also. हमारे पास कुछ sources भी हैं जो हम reconstruct कर सकते हैं कि क्या कौन से ideas उस टाइम रहे होंगे उस टाइम. That is also there, right? So we have so many ideas which were there under Buddhism, Jainism and Brahminical texts. These are the main evidences which we are talking about. ये तीन main evidences थे जिससे historians ने बाद में story को reconstruct किया. So we have other things also. So we have to depend on so many sources, right? A very important thing which was there that time, which is a very very important structure, और उसको preserve भी किया गया, उसका नाम था सांची. This is called stupa. That I will tell you later on what does stupa means. This is a place called Sanchi in Madhya Pradesh. So that is the main focus of this chapter, which we'll take on one by one. Now first topic of that is a glimpse of Sanchi. हमें सांची से क्या पता लगता है और इसमें क्या क्या ऐसी हिस्ट्री थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 19th century, so many Europeans were interested when they saw this stupa at Sanchi, right? There was a French people also. We have so many East Indian companies. ब्रिटेन की भी अपनी कंपनी थी, फ्रांस की भी अपनी कंपनी थी. सो दे वर डिमांडिंग फ्रॉम लेडी कॉल्ड शाहजहां बेगम, परमिशन लेना चाहते थे कि जो सांची का ईस्टर्न गेट वे, दे वांट टू टेक इट टू फ्रांस, राइट? और बिकॉज दे लाइक इट, दैट्स द रीजन वाई दे वांट टू take it to France. And otherwise that is the question, it is best preserved and they want to display it in France. अब देखिए आप, यूरोपियन कितने इंटरेस्टेड थे हमारे देश की चीज़ को फ्रांस में लेके जाना चाह रहे थे. ऐसे ही इंग्लिश पीपल वर डोमिनेटिंग इंडिया दैट टाइम. इट वाज ए पार्ट ऑफ कॉलोनी ऑफ इंडिया इटसेल्फ. So some English men also are interested in the same thing what French people wanted. They also want to display these models in England. And but this is very difficult task for a lady to settle both the parties. फ्रांस को भी खुश करना है, इंग्लिश को भी खुश करना है. हाउ इट कैन बी डन? तो उन्होंने क्या किया, दे हैव मेक द मॉडल. उन लोगों ने मॉडल बनाना शुरू किया. दैट मॉडल इज मेनली मेड अप ऑफ अ प्लास्टर क्ले, राइट? वो प्लास्टर से बना हुआ उन्होंने मॉडल को क्रिएट किया. और देन बोथ द पार्टीज कैन बी सेटिस्फाइड. और ये प्लास्टर की जो मॉडल्स थे उन लोगों को, इंग्लिश को लोगों को भी दे दिया और फ्रेंच लोगों को भी दे लिया, और बाकी जो मेन था दैट वाज रिमेन ऑन द साइट, राइट? एंड नाउ दिस सांची इज एन
भोपाल स्टेट, ये भोपाल के बहुत क्लोजर है. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज पर्सनली आई सॉ दिस स्तूपा that is in beautiful shape at this moment. It's a well preserved, well conserved type of things. और अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो इट्स यू कैन सी वेरी इजीली दिस स्तूपा, राइट. सो मेनली जो रूलर्स थे भोपाल के, द रूलर्स ऑफ भोपाल at that time there was lady was ruling भोपाल. उनका नाम शाहजहां बेगम था. उसके बाद उनके सक्सेसर्स हुए सुल्तान जहान बेगम. और इसने इन्होंने बहुत इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. और जब आप किसी चीज़ को कंजर्व करते हो या प्रिजर्व करते हो तो यू नीड लॉट ऑफ मनी फॉर दैट. सो दिस इज ऑन दीज लेडीज ओनली दैट दिस site is saved, right. Then there was a person called John Marshall. He played a very important role in Indian history, right. John Marshall का नाम वैसे भी इंडस वैली में भी आता है, right. He was a director general of archaeological department of India. So he wrote a lot of volumes on सांची. उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी जिसके बहुत सारे वॉल्यूम थे. और बाद में that volume has been gifted to Sultan Jahan, right. Because why this John Marshall has given this thing? The reason is very clear. Because she funded to write this thing. उन्होंने पैसे दिए थे इसीलिए वो बुक लिख पाए जॉन मार्शल. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी. एंड देन ही गिफ्टेड दिस वॉल्यूम्स टू दिस बेगम्स, राइट. एंड शी हैज परमिटेड हिम, जॉन मार्शल को परमिट भी किया था अपने गेस्ट हाउस में रहने के लिए जब तक वो लिखते रहे ये किताब को, वॉल्यूम्स को लिखते रहे, राइट. सो दैट आल्सो देयर. Then later on there was so many funding is required. ये पब्लिकेशन के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत थी. जब आप किसी किताब को पब्लिश करते हैं तो यू नीड लॉट ऑफ फंड आल्सो. दैट फंडिंग इज आल्सो गिवन टू हिम. स्तूपा इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. अगर हम देखें इस आर्किटेक्चर को तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट्स नॉट ईजिली फॉर्म्ड अप, राइट. बट ड्यू टू वाइज डिसीजन कुछ ना कुछ हुआ होगा, किस्मत अच्छी रही होगी. और बाई चांस some railway contractors also want some bricks because they were constructing some railway lines. builders भी कुछ घर वगैरह बना रहे थे और वो अपने साथ नहीं लेके गए, राइट. और म्यूजियम में भी नहीं गया ये सांची का स्तूप. अदरवाइज इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग वी कैन नॉट सी इन इंडिया. सो दीज पीपल हैव प्रिजर्व्ड, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर. Sanchi is a very important stupa according to Buddhist mythology, and that this stupa only transform our life for Buddhism. हमारा सोचने का नज़रिया बदल दिया सांची के स्तूप में. So that's also there. Then we have today it is a testimony. ये एक testimony की तरह act कर रहा है और इसका सक्सेसफुल रिस्टोरेशन भी किया गया, इसका ध्यान भी रखा गया, इसको रिस्टोर भी किया गया. And we should be thankful to a very important body of India that who is taking care of conservation and preservation of this. That the name of the body is Archaeological Survey of India, ASI बोलते हैं उसको. अब क्वेश्चन उठते हैं, there are so many questions which can be raised, right. इसके बारे में बहुत सारे questions raise किए जा सकते हैं. पहले बात तो what is the significance of this monument and why was the mound built. mound होता है ढेर, right. ये raise किया हुआ है इसीलिए इसको mound बोला गया. और इसमें है क्या, ऐसा क्या चीज़ खास है जो बुद्धिज्म ट्रेडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोन रेलिंग्स क्यों लगाई गई, चारों तरफ की बाउंड्री क्यों की गई, एंड हु बिल्ड दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट्स अ क्वेश्चन. एंड किसने इसको पे किया होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये कब डिस्कवर हुआ होगा. दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी विच वी कम अक्रॉस इन दिस चैप्टर. हम लोग देखेंगे एक एक करके इसकी स्टोरी को और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को हम देने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी अनकवर एट सांची. एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई जो हम अनकवर करने की कोशिश करेंगे सांची में. First of all thing, there we have so many informations because if you have to tell all these answers, you should know some information from which source you will depend on it. That's a very important sculpture. It's a very important architecture. It's a very important inscription. So हम लोग इन डिटेल से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इन सब क्वेश्चंस का जो इनमें दिया हुआ है, राइट. तो सेकंड टॉपिक जो आपका है वो है बैकग्राउंड सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स. अब बुद्धिज़्म के बारे में जो था इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों ने बताया ये धर्म का फ्लरिश हुआ, जैनिज्म भी बढ़ा उसी टाइम. और देयरफॉर इन फर्स्ट मिलेनियम बीसी बोलते हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री. ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट थी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए. कारण बहुत सही था. ऐसा क्यों हुआ,
इसको हम लोग टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। इसको टर्निंग पॉइंट क्यों बोलते हैं हम लोग? दैट्स अ क्वेश्चन, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, ये क्वेश्चन आप बहुत दिमाग में बहुत स्ट्रेट रखें, क्योंकि ये बोर्ड में मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है। देन वी हैव देयर आर सो मेनी रीजन because why first millennium is called turning point in world history, because we come across with so many philosophers came up। तो हमें बहुत सारे philosophers देखने को मिले हैं, उसमें से जारुत्रस्ट्रा है एक ईरान में। देन वी हैव a name of philosopher from China, that's Kong Zi। then we have Socrates, he wrote a lot of things on world history, very important philosophical thoughts he has given। प्लाटो का नाम भी हम भूल नहीं सकते। Aristotle in Greece, these all people are basically from Greece, right? Then we come across with Indian philosophers जिन्होंने एक धर्म को फ्लरिश किया, उनमें से महावीरा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्धा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आल्सो डन अ वंडरफुल जॉब इन इंडियन हिस्ट्री, राइट? एक नए धर्म को फ्लरिश करने का, नए आइडिया को डेवलप करने की कोशिश उन्होंने करी, राइट? इन सबको अंडरस्टैंड और इनकी मिस्ट्रीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको रिलेशनशिप बताना पड़ेगा ह्यूमन बींग्स में और कॉस्मिक ऑर्डर में। कॉस्मिक ऑर्डर होता है मिस्ट्री, क्योंकि जो धर्म होते हैं रहस्यमय टाइप से हैं, तो एक रिलेशनशिप हमको बिठाकर इसके बारे में पता करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन फाइंड इट आउट ऑफ दिस, अदरवाइज वी कैन नॉट इट आउट। देन वी हैव there was also time, first millennium is why is very very important, because first time new kingdoms, नए नए राज्यों का उदय होना शुरू हुआ। इससे पहले मैंने जो आपको थर्ड चैप्टर बताया था, आई टोल्ड यू देयर आर सो मेनी चीफडम्स, बहुत सारे चीफ हुआ करते थे, ठीक है। देन वी हैव जनपदास एंड देन न्यू किंगडम्स अराइव, न्यू सिटीज वर डेवलप। जब आपके किंगडम बनते हैं तो शहर बनते हैं, राइट? जब शहर बनते हैं तो वी हैव अ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ आल्सो प्रॉस्पर्स, they also change in variety of lives, right? We come across these type of kingdoms near Ganga Valley, right? गंगा वैली के आसपास ही शहरों का डेवलपमेंट हुआ और नए किंगडम्स का बनना शुरू हुआ। तो थिंकर्स ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी इन डेवलपमेंट्स को। लॉट ऑफ थिंकर्स ट्राई टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल डेवलपमेंट्स, राइट? नाउ विल टेक ऑन अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन। इसको भी देखेंगे हम, सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन की बात हम करेंगे। देयर वर सो मेनी प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन, ऐसा नहीं है कि दिस वाज समथिंग न्यू, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अरोज। देयर वर सो मेनी प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन। ब्राह्मणिकल सबसे ओल्ड है, हिंदुइज्म वाज वेरी ओल्ड, देयर वाज वेरी ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ थॉट्स, रिलीजन, बिलीफ, प्रैक्टिसेस वाज कैरिड आउट इन इंडिया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू। सो वैदिक ट्रेडिशन हमारा बहुत ओल्ड है, right? That we come across from a very important Veda, that's the first Veda of Hinduism, that is called Rig Veda, that has been completed around 1500 to 10,000 1000 BC। अब ऋग वेदा क्या है? That's a question, right? ऋग वेदा में क्या है? ये हमारा वेद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है इसमें? There is consist of so many hymns। Why these hymns were written? Because to satisfy variety of deities, भगवानों को खुश करने के लिए, कई देवी देवताओं को खुश करने के लिए। So we have mainly three gods, which in Rig Veda they have mentioned about three gods। उनमें क्या क्या नाम है उनके? One is Agni, one is Indra, one is Soma। This is very considered to the very pure sacred type of god that time, because it was worshipped so much that the reason why in Rig Veda they got place, right? So many of these hymns, आप मंत्रों को क्या करते हैं? आप चैंट करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, राइट? और उसके हिसाब से आप सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म करते हैं, राइट? लोग प्रे क्यों करते हैं? आज भी हम लोग पूजा क्यों करते हैं? प्रे फॉर आवर ओन लव वंस, राइट? तो उनके लिए उस टाइम लव वन कौन सा रहे होंगे? कैटल रहे होंगे, बिकॉज दैट गिव्स देम इनकम, राइट? अपने बेटों के लिए, देन गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। आज भी हम लोग इसी चीज़ की पूजा करते हैं, राइट? भगवान की। तो दैट टाइम ऑल्सो इन ऋग्वेदा ऑल्सो सेम थिंग वाज देयर। तो ऋग्वेदा में ये सब कुछ था। तो पहले जो सेक्रीफाइसेस होती थी, ठीक है, वो मेनली परफॉर्म कलेक्टिवली की जाती थी, इंडिविजुअल नहीं होती थी उस टाइम। और मेनली लेटर ऑन 1000 से लेकर 5000 के बीच में मेनली इट इज स्टार्टेड बाय हेड्स ऑफ अ हाउस होल्ड्स, और फैमिली के वेलबींग, अपने डोमेस्टिक यूनिट को सेटिस्फाई करने के लिए सेक्रीफाइसेस का कनेक्शन शुरू हुआ, राइट? वी कम अक्रॉस विद सो मेनी सेक्रीफाइसेस, हमें कई सेक्रीफाइसेस का पता लगता है। जैसे हम लोगों के दो एग्जांपल्स है, वन इज राजसूय यज्ञ, देन वी अश्वमेघ। रामायण में देयर इज अ स्टोरी ऑफ अश्वमेघ यज्ञ दैट इज कैरिड आउट बाय चीफ एंड किंग्स, राइट? एंड हु इज द मेन पीपल ऑन विच दिस चीफ एंड किंग्स डिपेंड ऑन? ये कौन लोग होंगे? ये सिर्फ प्रीस्ट ही होंगे, राइट? दे यूज्ड टू कंडक्ट ऑल दिस रिचुअल्स। देन वी हैव
and new questions are also raised. अब आपका टाइम बदल रहा है, lot of things has been changing, so therefore this is a new question. So we come across with so many good ideas that is also mentioned in Upanishad. ये भी हमारी एक religious book है, जैसे ऋग्वेदा है वैसे Upanishad is also there. 6th century BC onwards that is also written. And लोगों के क्वेश्चनों का जवाब उपनिषद देता है. People were very much curious, लोग बहुत जागरूक थे, जिज्ञासु थे, एंड दे वांट टू नो द मीनिंग ऑफ अ लाइफ. लाइफ क्या होती है? आज भी ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं. वी हैव सो मेनी आंसर्स फॉर दिस. व्हाट इज लाइफ, राइट? एंड व्हाट इज द चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ? क्या पुनर्जन्म होता है? दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन people wanted to know. Still is a mystery, right? Life का born up होता है after death, then rebirth होता है. So that type of questions mainly they try to ask in it. Okay. Then we have rebirth, mainly according to Hindu tradition. rebirth depend on your past actions. हमारे past actions पे depend करता है, right? और ये सारी चीज़ें अभी भी मिस्ट्री हैं, तो दैट टाइम आल्सो इट वाज मिस्ट्री. सो देयरफॉर दे गॉट डिबेटेड. सो मेनी पीपल डिबेट ऑन दिस क्वेश्चंस, राइट? थिंकर्स वर मेनली कंसर्न टू अंडरस्टैंड दिस. थिंकर्स ने ये चीज़ को समझने की कोशिश करी और उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करी और नेचर बताने की, अल्टीमेटली रियलिटी होती क्या, लाइफ क्या है, उसके आंसर्स देने की कोशिश इन थिंकर्स ने करी, राइट? सो ऐसा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वैदिक ट्रेडिशन ही नहीं दे रहे थे. इट इज़ गिवन बाय सो मेनी पीपल आल्सो, अदरवाइज आल्सो, ठीक है? और दे डोंट हैव सिंगल डोमिनेशन, अदर पीपल आल्सो डूइंग. सो पीपल स्टार्ट स्पेकुलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस. लोगों ने समझना शुरू किया जो सेक्रीफाइसेस हम लोग कर रहे हैं या करवा रहे हैं, इनका कुछ सिग्निफिकेंस भी है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है. वाई वी आर कैरिंग आउट दिस टाइप ऑफ sacrifice? We are spending so much money on it. Then Brahmins are also there in it. So this type of things were there. So we come across with so many glimpses of discussions. Debates की शुरू हुआ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें ऐसे कई डिबेट्स के बारे में आंसर्स मिलता है, राइट? तो दे मेंशन देयर वाज 64 सेक्ट्स, 64 डिवीजन थी, स्कूल ऑफ थॉट्स थे, जिनके बीच में डिबेट्स चलती रहती थी और इन क्वेश्चंस का आंसर था व्हाट इज लाइफ, रीबर्थ, दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस मेनली दे यूज्ड टू आंसर, राइट? लेकिन लेटर ऑन व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इट गोज टू श्रिंक. ये 64 सेक्ट्स धीरे धीरे कम होते चले गए. अराउंड टीचर्स, their role is very important because they travel from one place to another, try to convince what, ले पर्सन्स को समझाने की कोशिश करी, उनको अवेयर करने की कोशिश करी और वैलिडिटी बताने की कोशिश करी अपनी फिलॉसफी के बारे में बताने की कोशिश करी. हाउ दे अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. सो दे ट्राई टू कन्विंस पीपल, दे वांट टू अवेयर द पीपल, राइट? वी कम अक्रॉस विद डिबेट्स दैट टुक प्लेस इन कुटाग्रहशाला, राइट? इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी हट जिसकी रूफ पॉइंटेड होती है ऐसे, राइट? यहाँ हमें ग्रूव्स पता लगते हैं. ग्रूव्स क्या होता है? मेनली ग्रुप ऑफ ट्रीज, दैट्स कॉल्ड ग्रूव. जहाँ पे डिबेट्स होती थी, उनको जगह भी तो चाहिए थी कहीं ना कहीं डिबेट्स करने के लिए, तो कहाँ पे कर सकते थे? एक हट होती थी जिसको उन्होंने कुठारघरशाला बोला, राइट? एंड वे ट्रैवलर यूज टू हॉल्ट. जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आप रुकते हैं कुछ ऐसी जगहों पर और फिर आपकी डिस्कशंस होती हैं, फिर आपकी डिबेट्स होती हैं. सो दैट इज़ आल्सो वेरी कैरीड आउट, राइट? और अगर कोई आदमी सक्सेसफुल हो जाता है दूसरे को कन्विंस करने में, जो उसका राइवल होगा वो उसका फॉलोअर बन जाएगा. अगर मैं कोई बात समझाना चाह रहा हूँ और आप समझ गए हैं तो फिर आप मेरे डिसाइपल बन जाएंगे. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन मेनली, राइट? So therefore this is a very important thing, right? So so many people are there who support a particular sect, जिन्होंने पर्टिकुलर सेक्ट को सपोर्ट करने की कोशिश करी और कुछ ऐसे सेक्ट भी थे जो राइज हुए बाद में श्रिंक होते चले गए बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई पीपल, दे आर नॉट सक्सेसफुल, इसीलिए वो ख़त्म भी होते चले गए. सो वी कम अक्रॉस विद सो मेनी फिलोसफर्स, सो मेनी टीचर्स. तो फर्स्ट मिलीनियम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मैंने इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, व्हाई दिस मिलीनियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिलीनियम, राइट? सो वी कम अक्रॉस विद मेनी टीचर्स. उनमें से महावीरा का नाम आता है, बुद्धा का नाम आता है. दे ट्राइड टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास बिकॉज एवरीथिंग वॉज कॉडिफाइड इन वेदा and that was considered to be the superior text which we come across. तो उसको चैलेंज करना शुरू किया इन दोनों ने, चाहे वो महावीरा थे चाहे वो गौतम बुद्धा थे, राइट? सो दैट वाज सो मेनली दे ट्राइड टू एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एजेंसी. उनको ऐसा लग रहा था
कि ये इंडिविजुअल एजेंसी है जो बताती है men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulation of world existence। तो उनको लगता था कि ये लोग ज़बरदस्ती प्रेशराइज करते हैं और लोगों को अपने ट्रायल्स अपने हिसाब से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स वर आल्सो देयर विच दे वर नॉट हैप्पी, राइट। देयर वाज so much contrast from Brahminical and Jainism and Buddhism। हमारे ब्राह्मणिकल पोजीशन को बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट था। अगर जैनिज्म बुद्धिज्म को देखें और हिंदूज को देखें तो देयर इज लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्ट, राइट। वी कैन सी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पे देखें, राइट, और उनके थॉट्स को देखें तो वी कम अक्रॉस विद एंड इन हिंदुइज्म वी हैव 4 वर्णास विच आई टोल्ड यू इन चैप्टर नंबर 3। वी हैव ब्राह्मणास, वी हैव क्षत्रियास, वी हैव वैश्यास, वी हैव शूद्रास, राइट। उनका वर्ण डिटर्मिन हो जाता था अकॉर्डिंग टू द बर्थ ओनली। दैट वाज द मेन सेंट्रल स्टोरी ऑफ ऑल अवर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, राइट। और उसके बाद उनको किसी स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर में डाल दिया था। जैनिज्म बुद्धिज्म इस बात को नहीं मानते, राइट। दे नेवर डिटर्मिन्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द बर्थ ओनली। ऐसा उन्होंने नहीं करने की कोशिश करी। नाउ वी हैव अ थर्ड टॉपिक दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्लीज see to it, beyond worldly pleasures, the message of Mahavira। Now we'll start about Mahavira। He was a great teacher, right। तो बेसिक फिलोसफी ऑफ जैन एग्जिस्ट पहले से करती थी। ऐसा नहीं है कि वर्धमान महावीर आए उन्होंने जैन्स के बारे में बोलना शुरू किया, ऐसा नहीं है। जैन की स्टोरी ऑलरेडी थी बिकॉज ही वॉज 24th तीर्थंकर। और अगर हम देखें बर्थ ऑफ वर्धमाना, अगर हम देखें उनको महावीरा भी बाद में बोला जाता है। उनका नाम जो था बर्थ पे वो वर्धमाना था, राइट। लेटर ऑन उनको महावीरा बोला गया 6th सेंचुरी BC के आसपास, राइट। देन वी हैव जैन ट्रेडिशन में अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको बोला महावीर जैन को स्टार्ट करने वाले महावीरा नहीं थे। उनसे पहले 23 लोग आ चुके थे। तो ही वॉज 23rd। अदर टीचर्स आल्सो थे, तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर मतलब होता है गुरु, राइट, who used to guide men and women across the existence। लोगों को कैसे रहना है क्या नहीं रहना, so they used to tell it out। But the most important idea which has been given in Jain about the entire world is animated। हर आदमी जीवित है, चाहे वो पत्थर भी क्यों नहीं है, सारा संसार एक जीवित चीज़ है, लिविंग थिंग है, राइट। इवन चाहे स्टोन्स की बात कर लें, चाहे रॉक्स, हर में जान वो मानते थे। पानी भी में भी लाइफ है, ऐसा वो मानते थे जैन्स के हिसाब से, राइट। और सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है उनका जैन फिलॉसफी का, दैट इज नॉट टू इंजर एनी लिविंग बींग्स। तो हर आदमी अगर लिविंग है तो उसको चोट नहीं पहुंचाना, non-injury to living beings, especially to humans, animals, plants, insects, right। that is the central idea of a Jain philosophy। तो ये central idea है आपकी Jain philosophy। then we have mainly if you see principle of ahimsa is a very important, right। तो हिंदी में इसको अहिंसा कहा जाता है, अहिंसा परमो धर्म, right। so that is the main emphasis has been given on Jainism and that was a great impact on Indian system। हमारे इंडियन सिस्टम में इसको बहुत आज भी महत्व दिया जाता है। दैट इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू हिंदू सेंटिमेंट। सारे धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट था, पूरे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था, सारे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट था। तो जैन टीचिंग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मेनली इट्स ए साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हम लोग जन्म लेते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपकी लाइफ और डेथ, आपका बर्थ, सब डिपेंड करता है आपके कर्मा पर। हिंदू में भी यही कहा जाता है, जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आप जन्म लेंगे। तो अगर आपको फ्री होना है अपने रिसाइकल ऑफ बर्थ और डेथ से अगेन एंड अगेन, देन यू हैव टू परफॉर्म अ गुड कर्म, राइट। असैटिज्म, साधु संतों की तरह पीनेंस, अपने आप को तंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को बहुत तंग करना, तभी आप फ्री हो पाओगे इस साइकिल ऑफ कर्मा से। आप तभी दोबारा बर्थ नहीं लोगे, आप तंग नहीं होगे, क्योंकि अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो दिस आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच is a very important thing if you want to free from cycle of karma। so that is also given in us। then we can be there then therefore you have to act as a monastic, right। आपको एक साधु भिक्षु बनना पड़ेगा, right। that's a very very important condition to get salvation। तभी आपको मुक्ति मिलेगी। हर धर्म साल्वेशन की बात करता है, हर धर्म का कुछ ना कुछ बात होती है कि साल्वेशन कैसे, मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है।
राइट। सो तो इन लोगों ने बोला था कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो आपको असेटिज्म में बिलीव करना पड़ेगा, आपको पीनिंस में बिलीव करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो जैन के जो मॉन्क्स वगैरह भी थे और जो नन्स भी थे, उनको 5 कस्में लेनी पड़ती, दैट्स कॉल्ड 5 vows। व्हाट आर दिस 5 vows? फर्स्ट, यू कैन नॉट किल एनी, abstain फ्रॉम किलिंग, आप किसी को मार नहीं सकते, राइट। अहिंसा, स्टीलिंग एंड लाइन इज आल्सो प्रोहिबिटेड, राइट। देन आप प्रॉपर्टी को भी पोजेस नहीं कर सकते, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स विच वर देयर, 5 vows की बात हुई है। अब इन लोगों ने इतने बड़े सिद्धांत दे दिए, तो स्प्रेड कैसे हुआ होगा जैनिज्म? Jainism spread to many parts of India. Still, so many Jain people are there, part of our society. जैसे बुद्धिस्ट थे, वैसे ही जैन स्कॉलर्स ने भी बहुत कुछ लिखा। ऐसा नहीं है सिर्फ धर्म को ही स्प्रेड किया। They wrote a lot of wealth of literature to us, and the languages which that were very simple. Earlier, if you see Brahminical texts, they were written mainly in Sanskrit, but this mainly they tried to write in a very simple language. That's simple language Prakrit थी, right? संस्कृत में भी कुछ लिखा गया, तमिल में भी कुछ लिखा गया, लेकिन मेनली देयर लिटरेचर इज इन प्राकृत, राइट। सो वी कम अक्रॉस सो सेंचुरीज और इन मनुस्क्रिप्ट्स को, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, पेपर था नहीं, तो मनुस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता था। तो दिस टेक्स्ट वर मेनली प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी, स्टिल इट इज़, और ये टेम्पल्स में भी हैं। तो हमें कुछ स्टोन स्कल्पचर्स भी मिलते हैं ऐसे, जो हमारे धर्म के साथ कनेक्टेड है, रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ कनेक्टेड है, और ये डिवोटीज़ ने लिखे हैं, उनके भक्तों ने लिखे हैं, ठीक है। और एना तीर्थंकर्स ने लिखे हैं, सब टीचर्स। और ये भी हमें कई जगह से रिकवर हुए हैं, कई साइट से रिकवर हुए हैं, जिसके बाद जिससे हमें पता लगता है कि जैनिज्म फिलॉसफी में क्या क्या कहा गया है। और अब हम बुद्धा की बात करेंगे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। सो वेरी इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ दैट टाइम वॉज गौतम बुद्धा। ही वॉज अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल टीचर बुद्धा, राइट। तो ओवर द सेंचुरीज अगर हम देखें तो उनका मैसेज सारे इंडिया में नहीं स्प्रेड हुआ, ये सारे सब कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुआ। आज भी कई कंट्रीज वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें तो दे आर फॉलोइंग द मैसेज ऑफ बुद्धा, राइट। It has been reached to Central Asia, to China, then it reached to Korea, then Japan, then Sri Lanka, right? Then it is reaching to almost, it reached to Myanmar, then we have Thailand. तो इन कंट्रीज में भी ये स्प्रेड हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में स्प्रेड हुआ, ये बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड हुआ, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, थाईलैंड में स्प्रेड हुआ, इंडोनेशिया में स्प्रेड हुआ, राइट। तो हम लोगों को टीचिंग से पता क्या लगता है, हमें बुद्धा की टीचिंग से पता क्या लगता है, राइट। सो डैट हैज़ टू बी केयरफुली एडिट करना पड़ेगा, हमें उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हिस्टोरियंस के लिए बहुत मुश्किल काम था उसको एडिट करना, उसको ट्रांसलेट करना, उसके बाद एनालाइज करना बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, और सब कुछ देखना है, राइट। देन ओनली दे कैन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्ध, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी अबाउट हिम, राइट। सो वी कम अक्रॉस विद historians has to depend on so many things, right। तो historians ने मेनली जिन पे उनकी डिपेंडेंस बहुत सारी थी, तो दे ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द डिटेल्स ऑफ फ्रॉम हेजियोग्राफीज। व्हाट दिस हेजियोग्राफर्स मीन्स, हेजियोग्राफीज होती क्या है? जब कोई डिसाइपल अपने गुरु के बारे में लिखता है तो दीज आर कॉल्ड हेजियोग्राफीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था बुद्धिज़्म को जानने के लिए। सो मैनी ऑफ दीज वर रिटन डाउन एट लीस्ट अ सेंचुरी, बहुत पुराना नहीं है, राइट। तो डिसाइपल तो अपने गुरु के बारे में लिखते हैं, राइट। तो बुद्धा के टाइम से जब बुद्धा की निर्वाण प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया, राइट। और उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, उनकी मेमोरीज को प्रिजर्व करने की कोशिश करी, कि बिकॉज जो गौतम बुद्ध थे ही वॉज ए ग्रेट टीचर, राइट। तो उनके ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर उनके ट्रेडिशंस को देखें हम लोग, तो उनका बचपन अगर हम लोग देखें मेनली, तो उनका नाम सिद्धार्था था, राइट। और बाद में वो बुद्धा ट्रांसफर हो गए, राइट। उनका नाम, उनका टाइटल जुड़ गया बुद्ध, गौतम बुद्ध, राइट। सो दैट वाज आल्सो देयर। एंड बर्थ में उनको सिद्धार्था बोला जाता था, जब उनका बर्थ हुआ तो उनको सिद्धार्था बोलता। एंड ही वाज ए सन of a very famous chief of a Sakya clan. That time this clan was very important. I told you maximum kingdoms were not there, they were mainly clans. Therefore first century BC is considered to be very important.
and that was responsible of this clan to bring him up, brought him up, पैलेस में उनका brought up हुआ, और later on he faced harsh reality of life. One day when he was moving with his charioteer, जो उनका साथी था वो उनके साथ था, शहर में मूवमेंट कर रहे थे. Then he found the world is of sorrow. He saw world is full of sorrow, right? तो वर्ल्ड को जब उन्होंने देखा, उनको लगा बहुत परेशानियां हैं लोगों के पास, बहुत दुखी हैं लोग. एंड ही वॉज वेरी मच इन sorrow. He was totally traumatic. That word has been mentioned about this, right? तो इसीलिए